Hello, good morning, students. Hello. हेलो, आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग. Okay. In last lecture, we already started the topic of thread, but some points of the thread topic is remaining. That's why I again started this topic. Okay. I hope आप सभी को याद है थ्रेड क्या बताया था मैंने. What is the definition of thread? Hello. Hello. What is the definition of thread? Anyone remember? Hello. Yes, Siddheshwari. Thread is a lightweight process and process is a heavyweight process. Thread is a lightweight process. Okay. Now thread के बारे में और बताया था. प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है. प्रोसेस कंटेन द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थ्रेड में क्या क्या रहता है. थ्रेड में स्टैक डेटा एंड शेयर्ड मेमोरी. लास्ट टाइम उसकी डायग्राम भी देखा था डिटेल में. कल हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे. रिवीजन में मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हुए हैं ना, ये चैप्टर 3 पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा टाइम लगा था. तो सारे जो टॉपिक्स है वो सारे रिकॉल करेंगे. रिवीजन में सारे एक बार फिर से देखेंगे. ओके. तो आज हम थ्रेड देखते हैं. और वन मोर थिंग, वेडनेसडे को आप लोगों का एक ऑनलाइन क्विज होगा. सरप्राइज क्विज टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको 2 दिन पहले इसके लिए बता रही हूँ कि चैप्टर 1 का आपको प्रिपरेशन करके रखना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेके आपका 20 मार्क्स का ऑनलाइन क्विज होने वाला है वेडनेसडे लेक्चर. ओके. तो वेडनेसडे का टाइमिंग जब भी फ्री टाइमिंग होगा, जैसे ही उस टाइम पे मैं आपको गूगल मीट के थ्रू जितने लोग ज्वाइन होंगे उतने ही लोगों को मैं यहाँ पे मैसेज में सेंड करूंगी लिंक, और उतने ही लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे. मैं उसको व्हाट्सएप पे नहीं डालने वाली उस क्विज को. ठीक है. नेक्स्ट थ्रेड स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पीपीटी. नेक्स्ट. as we know that the thread is the unit of CPU utilization that form the basis of multi-threaded computer system. अब CPU यूटिलाइजेशन अगर आपको मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन रखना है तो उसके लिए एक से ज़्यादा थ्रेड होने चाहिए, मल्टी थ्रेड होने चाहिए. एंड इफ देयर इज मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर सिस्टम इज देयर, then the total complex task is divided into smaller number of activities and smaller number of parts, and this smaller number of activity is done by the thread. As we know that in Windows operating system, Windows 32, Win32 API is the name of thread. Okay. In Java thread libraries are there. Pthread, these are nothing but the names of the thread. Thread is देखो अभी thread की जरूरत क्या होती है. इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि बीच में सीपीयू आइडल नहीं होना चाहिए. इसलिए स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क आप रन करते रहेंगे. और स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क कैसे, स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैसे रन करेंगे. कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके आप उसको मल्टीपल टास्क एट ए टाइम रन कर सकते. और जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड, we can take the example of MS Word. In MS Word, while typing any document, some grammatical mistakes is checked by one thread, some spelling related mistakes are checked by one thread, and some synonyms, similar words are suggested by one thread. Means at a time number of threads are executing and they are performing their role and suggesting some answer. This is nothing but the activity of thread. In thread, you can also change the font size. You can also change the text color, background color.
These are the different activities. One complex function means one complex document is divided into smaller number of activities, font, their grammatical mistakes, their spelling mistakes and all. This is checked by the number of threads, and this number of multiple threads are present in one within a one process, within a one Microsoft document. That's why it is a one process, and in one process number of multiple threads are executed. That's why the concept of multi-threaded or multi-threading concept is introduced. And in Windows 32, Win32 API, application programming interface, is nothing but a system call, and in this system call is performed with the help of number of smaller threads. Okay, next. Last time we already discussed about this. There are two types of threads are there: single threaded and multi-threaded. In single threaded, only one thread is in one process. Only one process is there, and in one process only one thread is there, and the thread contain code, data, file, register and stack. Then in single threaded process, there is only one code, data, files, register and stack section. But when the concept of multi-thread, one process, but there are a number of process. In multi-threaded process, in one process there are number of threads are there. That's why it is called as multi-threaded. And in single threaded, only one process, then it is called as single threaded. In every thread contains some register, stacks, code, data and files. As per this diagram, we can see that in this diagram, code, data and files. Code means number of instruction, data means variable contains some values, and files, list of some open files are there. Hash include, stdio.h, conio.h, that type of files are there. These types of common data is shared by number of threads, and this data is common for all the thread. But every thread have different registers, AX, PX, CX, TX. Every register have different values in registers, and every thread have different values in a stack. While the thread is executing, the values are pushed into the stack, and while the process completes its execution, the values are popped. Pop means out from the stack. सो इन दिस डायग्राम, आपको डायग्राम का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जब सिंगल थ्रेड होता है तो सिंगल थ्रेड के लिए भी कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर और स्टैक यही डेटा स्टोर किया जाता है, और जब मल्टी थ्रेडेड का कंसेप्ट होता है उसमें भी वही डेटा शेयर किया जाता है। लेकिन मल्टी थ्रेडेड में कोड, डेटा और फाइल्स ये कॉमन रहती है, कॉमन शेयर्ड मेमोरी से उसको पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो अलग अलग रहती है। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का? ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ इन सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। समझ में आ रहा है सभी को? Now next PPT. If you have any question, you can ask me now. What is the benefits or application of threads? अभी थ्रेड्स किसके लिए बनाते हैं? थ्रेड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि थ्रेड लाइट वेट होने की वजह से उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट रहता है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स का मतलब ये रहता है कि वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोसेसेस। हैवी वेट मतलब उसमें को मेमोरी ज्यादा लगती है, उसको डेटा स्टोर करने के लिए, स्टैक स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगती है वो ज्यादा लगती है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, नंबर ऑफ ओपन फाइल ज्यादा लगते हैं। तो दैट्स वाई उसका रिस्पॉन्स जो रहता है, उसको कलेक्शन में सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके रेडी होने में ज्यादा उसको टाइम लगता है। दैट्स वाई उसका रिस्पॉन्स जो है वो इतने जल्दी, एंड थ्रेड इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस।
और फाइल्स को सभी को कलेक्ट करके रखा होता है। और जब थ्रेड को रन करना है तो थ्रेड क्या करता है, सिर्फ कोड, डेटा और फाइल्स को जो ऑलरेडी प्रोसेसेस के लिए यूज किया है उसी को उसको ओपन करके एक्सेस करता है। मतलब ऑलरेडी ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल, सो थ्रेड कैन जस्ट एक्सेस दैट रिसोर्सेज। सो नो नीड टू रेडी, मतलब उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, दैट्स उसका रिस्पॉन्स। Next part is the resource sharing. Okay. Resource sharing means resource are shared by the thread. अभी आपने थ्रेड का डायग्राम देखा, थ्रेड के डायग्राम में आपने देखा कि सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड में क्या है कि जब मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को, मतलब कोड, डेटा और फाइल्स को शेयर करते हैं। डायग्राम देखा आपने? ठीक है, तो वहां पे कोड, डेटा और फाइल जो है वो कॉमन है और उसको नंबर ऑफ मल्टीपल थ्रेड जैसे रन किया जाएगा वो उसको वहां से एक्सेस करेगा। तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। और जब भी रिसोर्सेज का कंसेप्ट आता है, मैं आपको नंबर ऑफ टाइम यही बताती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज में आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में आते हैं ऑल द सॉफ्टवेयर फाइल्स। हार्डवेयर डिवाइसेस में आता है सीपीयू, साइकिल्स, मेमोरी, ये सारे हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर में फिर ये आता है ऑल द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ये रहता है आपके सॉफ्टवेयर इनपुट, आईओ फाइल्स जो रिक्वायर्ड है फाइल्स, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। इकोनॉमी, और एक से ज्यादा अगर थ्रेड, आप क्या कर सकते हो कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रहे और एक दूसरे से कोलैबोरेशन में रन होने की वजह से उनका इकोनॉमी मतलब कॉस्ट वाइज आप उसको बोल सकते हो कि इट इज बेनिफिशियल एंड स्केलेबल। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या रहता है, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल। मतलब आप किसी भी टाइप के थ्रेड, एक प्रोसेस के डिपेंड होने के बाद, एक प्रोसेस पे डिपेंड होने के बाद आप किसी भी टाइप के थ्रेड को रन कर सकते हैं। मतलब वो छोटा थ्रेड हो या बड़ा थ्रेड हो, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो स्केल है वो कम ज्यादा हो सकता है, हाई या लो हो सकता है, और उसको आप रन कर सकते हो। नाउ मल्टी कोर सिस्टम आर पुटिंग प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स। जब भी आपको मल्टीपल प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम्स करने होते हैं, मल्टी कोर का मतलब क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है और वहां पे बहुत सारे मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज है। तो ऐसे प्रोग्राम करते समय हमें क्या रहता है कि प्रोग्रामर्स को उस प्रोग्राम को बनाने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज को डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडिंग द एक्टिविटी, और इक्वल एक्टिविटीज को डिवाइड करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। एक मॉडल बहुत ज्यादा बड़ा, एक बहुत छोटा, इस तरह से नहीं है, इक्वल और इक्वली और बैलेंस उसको डिवाइड करना पड़ता है। देन डेटा स्प्लिटिंग, और डेटा जो है वो सभी में कॉमन स्प्लिट किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो उनका स्प्लिटिंग भी अच्छे से होना चाहिए। डेटा डिपेंडेंट रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो डेटा डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। एंड लास्ट इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो ये वाला जो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है, ये जो वाला पार्ट है,
डिवाइडिंग द एक्टिविटीज, बैलेंस, डेटा स्प्लिटिंग, डेटा डिपेंडेंसी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो जब भी बड़े वाले प्रोग्रामर उसके ऊपर प्रेशर क्या रहता है कि एक्टिव डेटा को इक्वली स्प्लिट करना सभी पार्ट में, और डेटा अगर डिपेंडेंट है मतलब एक थ्रेड एक दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है तो डेटा का इनपुट आउटपुट उसको प्रॉपर इसका आउटपुट आने के बाद दूसरे को इनपुट आना चाहिए। और पूरे टेस्टिंग जब थ्रेड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा या फिर नंबर ऑफ एक्टिविटीज डिपेंडेंट रहेगी तो उसका टेस्टिंग और डिबगिंग भी अच्छे से होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द मेन फीचर्स व्हेन प्रिपेयरिंग एनी प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर है। मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से सिस्टम को कॉल करता है। जैसे आपको लास्ट टाइम एक सिस्टम कॉल का कंसेप्ट आया था, सिस्टम कॉल में भी हम क्या करते हैं कि वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी हम विद द हेल्प ऑफ थ्रेड उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो जब सर्वर के पास मतलब ओएस के पास अगर कोई रिक्वेस्ट जाता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसके रिलेटेड थ्रेड को कॉल करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। फिर वो थ्रेड क्रिएट होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, और उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको रिज्यूम करते हैं। मतलब उतने जब तक वो थ्रेड एग्जीक्यूट होता है उतने टाइम तक आपका प्रोसेस क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है। और जब उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको रिज्यूम करके नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग स्टार्ट करते रहता है नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है इसलिए नहीं मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आर देयर, यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। यूजर थ्रेड का मतलब क्या रहता है कि द थ्रेड विच इज क्रिएटेड एंड मैनेज बाय द यूजर, इट इज कॉल्ड एज यूजर लेवल थ्रेड। द थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी, and there are the examples of user level threads are POSIX. POSIX is the name of operating system. एक POSIX नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उस थ्रेड को पी थ्रेड कहा जाता है। Win32 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उसको Win32 थ्रेड कहा जाता है, और जावा के अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उसको जावा थ्रेड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, और कर्नल थ्रेड का मतलब क्या रहता है, द थ्रेड विच इज मैनेज एंड क्रिएटेड बाय द कर्नल ओनली एंड इट इज कॉल्ड एज कर्नल थ्रेड। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में। यूजर लेवल थ्रेड इज क्रिएटेड बाय द यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड इज क्रिएटेड बाय द कर्नल, एंड यूजर लेवल थ्रेड इज नॉट सपोर्टेड बाय द कर्नल। हाँ, यूजर लेवल थ्रेड को कर्नल सपोर्ट नहीं करता है। अगेन कर्नल इज टोटली अनवेयर अननोन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ यूजर लेवल थ्रेड, और कर्नल को ये भी पता नहीं रहता है कि यूजर लेवल कोई थ्रेड है या नहीं है, उसको उसके बारे में पता नहीं रहता है। कर्नल लेवल थ्रेड इज मैनेज सपोर्टेड बाय द, डिफरेंस क्या है कि व्हेन द दैट टाइम इफ एनी वन ऑफ द थ्रेड इज ब्लॉक, कोई भी एक थ्रेड जो आप यूजर लेवल थ्रेड बना रहे हो और उसको ब्लॉक आ जाता है, एक हाथ थ्रेड आपका ब्लॉक पे ऑल द टोटल यूजर रिलेटेड जो थ्रेड्स है उसके रिलेटेड जो डिपेंडेंट थ्रेड्स है वो सारे के सारे ब्लॉक थ्रेड। इफ द कर्नल लेवल थ्रेड एनी वन ऑफ द थ्रेड इज ब्लॉक, उसमें से अगर कोई एक भी थ्रेड अगर ब्लॉक हो जाता है तो उस टाइम पे क्या रहता है, रिमेनिंग थ्रेड से कर्नल अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक थ्रेड ब्लॉक होने के बाद कंप्लीट कर्नल थ्रेड को ब्लॉक नहीं होता है। यूजर लेवल थ्रेड में क्या होता है, एक यूजर लेवल थ्रेड अगर ब्लॉक हो गया, एक यूजर लेवल थ्रेड अगर ब्लॉक होता है तो पूरा का पूरा यूजर लेवल थ्रेड मतलब ऑल द यूजर लेवल थ्रेड्स आर ब्लॉक। बट इन कर्नल लेवल थ्रेड इफ वन ऑफ द कर्नल थ्रेड इज ब्लॉक, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा के पूरे सारे कर्नल थ्रेड ब्लॉक हो जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को, क्लियर है आवाज? ब्रेक होता है मैम। कौन सा पार्ट रिपीट करना है, कहाँ से? हेलो, सभी को आवाज आ रही है क्लियर?
रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? ओके, अगेन मैं ये वाला टॉपिक रिपीट करती हूँ जिन लोगों को आवाज नहीं आया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आर देयर, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, इन यूजर लेवल थ्रेड का मतलब क्या रहता है? User level thread means that the thread which is created by the user and managed and supported by the user libraries or application, then it is called as user level thread. But if the thread is managed, supported and created by the kernel, then it is called as kernel level thread. Okay, in user level thread, user level thread, if one of the thread is blocked, if one of the thread is not responding, block का मतलब क्या है? If one of the thread is not responding or blocked, that time all the user level threads are blocked. All the user level threads are blocked. But if in the same case, if in kernel thread, if one of the kernel level thread is not supported, is blocked, at that time it's not means that all the kernel threads are blocked. It only block the particular thread, but remaining threads are activated. Means kernel can perform the same role with the help of another threads, and it can perform the activity by another thread. Means एक thread block होने के बाद दूसरे thread उसको block नहीं किया जाता. So this one is the kernel level thread. And the examples of kernel thread: Windows XP 2000, Solaris, Linux, True 64 Unix, Mac OS. These are the examples of operating system. True 64 is the name of again operating system. Mac OS is the name of operating system. Linux, Solaris. These are the names. The kernel threads are present. In previous slide, the user level threads are present between the user level threads are prepared and presented by the users only. इसके लिए यूजर अपना अलग से एक लाइब्रेरी बना सकता है. ठीक है, उसमें आपने लास्ट वाले डायग्राम में देखा POSIX is the name of operating system where user level threads are created and managed by the user, and the thread name is pthread. Then in Java में आप जावा प्रोग्रामिंग करते हो तो जावा प्रोग्रामिंग कौन करता है? यूजर. And your user created the program for multi-threading, means the thread is created by the user, managed by the user. That's why the name of Java thread is Java thread. Okay, and Java thread is managed by the user. POSIX, pthread, Java thread, and Windows 32, Win32 API में से कुछ API यूजर बना सकता है तो उसको भी आप यूजर लेवल थ्रेड कह सकते हो. Now you can understand the basic difference between the user level and kernel level thread. समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये टॉपिक समझ में आया? Yes, ma'am. Next PPT. Next, this is the important part. ये हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है. What are the multi-threading models? What are the models of multi-threading? तो मल्टी-थ्रेडिंग के लिए कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं या फिर थ्रेड के कौन से मॉडल्स होते हैं? तो उसका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आता है. ये हमेशा याद रखना. There are 3 types of model: 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, या फिर आप स्कूल टाइप बोल सकते हो, और many-to-many. अभी ये क्या कंसेप्ट है? नेक्स्ट, अभी देखो many-to-1 का कंसेप्ट क्या है? मेनी यूजर लेवल थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड. अभी उसमें क्या रहते हैं कि नेक्स्ट इसमें उसका डायग्राम होगा. नेक्स्ट ये वाला डायग्राम देखो. अभी यहाँ पे है ना एक से ज्यादा यूजर लेवल थ्रेड है, और यूजर लेवल थ्रेड क्या रहते हैं? यूजर ने क्रिएट किए हुए थ्रेड है, और वो सारे यूजर ने यूजर क्रिएटेड जो थ्रेड्स है वो मैनेज कौन कर रहा है? कर्नल. मतलब एक ही कर्नल, ओनली वन कर्नल थ्रेड कैन मैनेज नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स. एक सिंगल कर्नल अगर नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है,
सपोर्ट कर रहा है तो उस टाइम पे उसे कहा जाता है मेनी टू वन। मेनी क्यों कहा है? बिकॉज इन यूजर साइड देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स आर देयर, दैट्स व्हाई इन यूजर साइड इट इज कॉल्ड एज मेनी। बट इन कर्नल साइड ओनली वन कर्नल लेवल थ्रेड इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन। मेनी टू वन। प्रीवियस स्लाइड देखो। In the many to one, there are many user level threads mapped to single kernel level threads. तो many kernel level threads का मतलब क्या रहता है? एक से ज्यादा यूजर ने क्रिएटेड जो थ्रेड्स है उन सभी को कंट्रोल, मतलब एक सिंगल थ्रेड कर रहा है। और इसके एग्जांपल से ये वाला थ्रेड कौन सा है? सोलरिस ग्रीन थ्रेड और GNU पोर्टेबल थ्रेड्स। These are again the name of the operating system। और इनमें ये वाले जो थ्रेड्स है, जो नाम अभी स्पेसिफिक वहां पे दिए है, सोलरिस ग्रीन, ये वाले जो थ्रेड है इसमें बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड को एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज करता है, मैप करता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी वन टू वन का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला जो वन है वो वन यूजर लेवल थ्रेड है और सेकेंड वाला जो वन है वो वन कर्नल लेवल थ्रेड है। ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू कर्नल थ्रेड। अभी हर एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक सेपरेट कर्नल थ्रेड है, मतलब हर एक यूजर लेवल थ्रेड को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक सिंगल कर्नल कर रहा है। इसका डायग्राम नेक्स्ट। ये देखो, एक सिंगल है थ्रेड और हर सिंगल थ्रेड को, हर सिंगल यूजर लेवल थ्रेड को कंट्रोल को कर रहा है एक सिंगल कर्नल कर रहा है। इसको इसीलिए उसको कहा जाता है वन टू वन। और बैक प्रीवियस स्लाइड। इसके एग्जांपल्स है विंडोज एनटी नेटवर्किंग के लिए जो विंडोज बनाया था, उस विंडोज में, एक्सपी में और 2000, ये वाले जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है इन सभी में वन टू वन थ्रेड का कंसेप्ट यूज किया था। Then Linux, Solaris 9 and later. These are the various examples of operating system where one-to-one multi-threading models are present. Okay. Next. Many to many. Many का मतलब क्या है? Many at user level thread and many at kernel level thread. Allows many user level thread to be mapped to many kernel thread. It allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads, and Solaris prior to version 9. This is the example of many to many. Windows NT 2000 with the thread fiber package. Windows NT 2000 में नॉर्मली वन टू वन थ्रेड था, लेकिन उसमें आप थ्रेड फाइबर पैकेज अगर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे मेनी टू मेनी मॉडल को वो सपोर्ट करता है। अब इसका डायग्राम कैसे रहेगा? मेनी यूजर लेवल थ्रेड और मेनी कर्नल लेवल थ्रेड। नेक्स्ट। See this diagram, there are multiple user level threads are there, and these multiple user threads are managed and supported by the multiple kernel level threads. This is the important questions of multi। ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना, वन टू वन, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। मेनी टू वन जो वाला कंसेप्ट है ना, उसके उल्टा वन टू मेनी भी है। वन टू मेनी मतलब एक यूजर लेवल थ्रेड को कंट्रोल करने के लिए मेनी कर्नल थ्रेड्स भी रहते हैं कभी कभी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये वाले पीपीटी में इतने ही कंसेप्ट है आपके। अभी देखो, थ्रेड वाला कंसेप्ट जो था कल हम रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन में जो भी पीपीटी इस चैप्टर के रिलेटेड थे उसको थोड़ा सा फास्ट में रिकॉल करेंगे और सारे कंसेप्ट फिर से रिपीट करने वाले। तो थ्रेड में आपका थ्रेड का डेफिनेशन था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। एंड नेक्स्ट इज द यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड के बाद नेक्स्ट आता है देयर इज अ user level thread and kernel level thread, and again single threaded and multi threaded. These are the types of thread. तो ये टाइप्स ऑफ थ्रेड थे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ थ्रेड के बाद मैंने आपको थ्रेड के ये भी बताएं, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ थ्रेड। इतना ही पार्ट आपके सिलेबस में है और उतना ही पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, उससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है वाला टॉपिक।
ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रेड का टॉपिक कंप्लीट करते हैं. नाउ द रिमेनिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अभी तक मैंने थ्रेड के बारे में जितना बताया, जिसको कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो अभी. नाउ ओपन द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पीपीटी. Hello. If anyone have any question, you can ask me now. Related to thread. Okay. Next topic is the inter-process communication. It is the inter-process communication between the independent or cooperative processes. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैंने जब भी आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का टॉपिक आया उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि some of the processes are independent process and some of the processes are cooperative and cooperating processes. Independent process means that the process which is not depend on any other process, then it is called as independent process. But if the process is dependent on another process and the process is executing with the help of another process, synchronized with another process while executing, then if any process is dependent of any other process and it is affected by other process, और किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की वजह से कोई दूसरा प्रोसेस अगर अफेक्ट होता है तो उसे, और अफेक्ट कब होगा, बिकॉज द डेटा इज शेयरिंग एंड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ डेटा द प्रोसेस चेंजेस इट्स वैल्यूज, तो उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी चेंज होगा थ्रेड का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिंग प्रोसेस. और कोऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आता नहीं है. द इंडिपेंडेंट प्रोसेस कम्युनिकेशन is the inter-process communication is only present between the cooperative and cooperating processes only. And the reason behind cooperative processes are they can information sharing, computation speed up, modularity and convenience. अभी प्रोसेसेस को हम कोऑपरेटिंग क्यों बनाते हैं, इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम थोड़ा सा मॉड्यूलर होता है. मॉड्यूलर अगर है तो उसका मॉड्यूलरिटी में थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट पड़ता है, एग्जीक्यूशन का स्पीड बढ़ता है, इंफॉर्मेशन हम शेयर करके प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं, और कन्वीनियंट है. कन्वीनियंट का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड रहने की वजह से उनका जो कन्वीनियंस है, मतलब एग्जीक्यूशन जो वो कन्वीनियंट है और इजी रहता है. देन हाउ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डन. तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अगर करना है तो यहाँ पे दो टाइप्स, देयर आर द टू वेज फॉर द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. फर्स्ट वे इज द शेयर्ड मेमोरी एंड सेकेंड इज द मैसेज पासिंग सिस्टम. ओके, there are the two ways for the inter-process communication: shared memory and message passing system. Next, these are the diagrams of message passing system and shared memory. This PPT is totally belongs to your reference book, Silberts-Galvin. Okay, तो Silberts-Galvin के PPTs भी अवेलेबल है और उसका रेफरेंस बुक भी अवेलेबल है. जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट हुए उसी टाइम पे आपको ये बुक मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप पे. जिनके पास नहीं है वो गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अभी देखो मैसेज पासिंग सिस्टम में क्या रहता है, देयर इन फर्स्ट डायग्राम देयर आर द टू प्रोसेसेस आर देयर, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, एंड दे कैन कम्युनिकेट. अभी देखो प्रोसेस ए से एरो ड्रॉ किया है मैसेज क्यू की तरफ, और प्रोसेस बी से एरो ड्रॉ किया है मैसेज क्यू की तरफ. तो जो भी आपको प्रोसेस ए और बी के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ सेंड एंड रिसीव सिस्टम कॉल they can just put the message in a message queue and appropriate message is read by the appropriate process. तो जिसको जो भी मैसेज डालना है वो क्या करेगा, मैसेज क्यू में अपना मैसेज लिख के रखेगा, और जिस प्रोसेस को उस मैसेज को पढ़ना है तो सिर्फ उस मैसेज क्यू में जाके उस मैसेज मतलब वहां से उसको पढ़ेगा. और शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या रहता है, शेयर्ड मेमोरी में एक कॉमन मेमोरी एरिया है जहाँ पे सारे डेटा, रजिस्टर के वैल्यूज, ये सारे कॉमन डेटा जो कॉमन पार्ट है उसको एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं.
और जिस प्रोसेस को जब भी वो डेटा लगेगा, रजिस्टर की वैल्यूज लगेंगी, कोड लगेगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ शेयर्ड मेमोरी में जाएगा, उसको वहां से एक्सेस करेगा, और उसको एक्सेस होने के बाद जैसे वो प्रोसेस का एक्सेस हो जाएगा तो वो दूसरा प्रोसेस वहां पे एक्सेस कर सकता है। These are the two ways for the communication between the processes. तो इसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहते हैं। अभी शेयर्ड मेमोरी में क्या रहता है कि कॉमन कोड और डेटा, तो प्रोसेस बी ने अगर एक्सेस किया तो वो अपना डेटा वहां पे रखेगा, चेंज हो जाएगा डेटा, और प्रोसेस ए उसको एक्सेस कर सकता है उस डेटा को, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन या अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो ये वाला कर्नल वाला जो पार्ट है, ये कर्नल इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जब आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, उसके डायग्राम में जब हमने मेमोरी का डायग्राम देखा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साइड पे होता है और यूजर एरिया एक साइड पे होता है। तो यहाँ पे यूजर एरिया में प्रोसेस ए और बी एग्जीक्यूट हो रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट नीचे दिखाया है डायग्राम में। जब प्रोसेस ए बी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है या कोई मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज सेंड करने के लिए वो मैसेज क्यू में डाल के मैसेज सेंड करेगा, या फिर कॉमन एरिया जो है, कॉमन शेयर्ड एरिया, शेयर्ड मेमोरी जो है, उसमें अपने वैल्यूज रख के, अपने रजिस्टर के वैल्यूज, डेटा के वैल्यूज रख के उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट, ये मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। जो किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से अफेक्ट नहीं होता है, ना ही किसी दूसरे को अफेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। लेकिन जो प्रोसेस दूसरे की एग्जीक्यूशन की वजह से अफेक्ट होंगे और कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, और किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो उसे कोऑपरेटिंग कहा जाता है। अभी इसके एडवांटेज भी देखे आपने, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीड अप, मॉड्यूलरिटी एंड कन्वीनियंस। नेक्स्ट, अभी इसके लिए एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का एक प्रॉब्लम है। उसका एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का प्रॉब्लम कैसे रहता है कि सपोज प्रिंटर का एक एग्जांपल लेते हैं हम। प्रिंटर में जब आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप उसको, उस पर्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्ट करते हो, प्रिंट कमांड देते हो, तो वहां पे प्रिंटर का एक मेमोरी रहता है, बफर रहता है। बफर में जैसे ही आपने प्रिंट कमांड दिया तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो क्या रहता है, बफर में होल्ड किया जाता है। और प्रिंटर क्या करता है, जैसे उसको वो सारा डेटा जब आप उसको बफर में डालते हो तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ डेटा को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग सम डेटा फॉर कंज्यूम। तो जैसे ही वहां पे डेटा आ जाएगा तो वो प्रोड्यूसर का काम है। प्रोड्यूसर मतलब व्हेन यू गिव कमांड फॉर प्रिंट देन द बफर इज फुल, मीन्स प्रोड्यूसर इज हैविंग सम डेटा। और कंज्यूमर का काम क्या रहता है, जो भी डेटा आपने प्रिंट कमांड के थ्रू दिया है वहां से एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वहां से डेटा लेना, और उसको बफर से हटा के उसको क्या करना है, प्रिंट करते जाना। तो यहाँ से जैसे एक एक कैरेक्टर आप बफर से हटाते जाओगे तो आपका जो बफर है वो एक से साइज उसका डिक्रीमेंट, मतलब उसको कम करते जाएगा। तो प्रोड्यूसर का काम क्या है, कैरेक्टर को डालते जाना है, मतलब काउंटर बफर को बढ़ाते जाना, आई प्लस प्लस करते जाना। और कंज्यूमर का काम क्या है, वहां से कैरेक्टर को हटाते जाना, मतलब आई माइनस माइनस करते जाना। देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट को शेयर्ड मेमोरी के सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया है। शेयर्ड मेमोरी, अभी शेयर्ड मेमोरी में क्या दिया है, बफर का साइज यहाँ पे 10 दिया है। प्रोग्राम को समझ लो आप पहले। द साइज ऑफ अ बफर इज 10 एंड इन दैट साइज द आइटम इज इंसर्टेड। ओके, आइटम का मतलब क्या रहता है, जो भी हम कैरेक्टर उसको प्लस प्लस या आउट करने वाले वो सारे कहाँ पे रहेंगे, आइटम बफर में। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, और स्ट्रक्चर के बाहर जो है वो सारे आइटम मतलब आइटम इज वन ऑब्जेक्ट, और वहां पे एक बफर मतलब एक एरे क्रिएट किया है जहाँ पे बफर साइज मतलब 10 कैरेक्टर्स आप एट ए टाइम आप स्टोर कर सकते हो। और जब वहां पे एटम में डेटा अगर आपका आएगा तो इन मतलब वहां पे इनपुट होते जाएगा तो इन प्लस प्लस होगा, और जब वहां से डेटा आउट होते जाएगा तो आउट प्लस प्लस होगा। इन और आउट करंटली 0 रखे। नेक्स्ट, अभी देखो
प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का काम मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रोड्यूसर का काम है कि वहां पे बफर में एक एक कैरेक्टर और एटम डालते जाना, मतलब आई प्लस प्लस करते जाना। अभी देखो ये वाला जो कोड है ये प्रोड्यूसर का है, और प्रोड्यूसर के कोड को नाम क्या दिया है, प्रोड्यूस वाइल ट्रू, वाइल ट्रू मतलब वाइल वन, ट्रू मतलब वन। यहाँ पे क्या किया है, वाइल इन प्लस वन मॉड, मॉड का साइन दिया है, बफर साइज इज इक्वल टू साइज सर्कुलर क्यू की जैसे आता है। अगर पहला कैरेक्टर मैंने डाला और उसी टाइम पे उसको कंज्यूम कर लिया, प्रिंट कर लिया, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते होंगे तो मिलेगा फर्स्ट एटम असाइन किया है, बफर इन इज इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, मतलब फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर दिया है, फर्स्ट कैरेक्टर बफर के इन वाले मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आई प्लस प्लस क्या है, और यहाँ इले दिया है, कंसेप्ट है। एक भी अगर पोजीशन ले रहा तो मतलब जो भी आप वन बाय वन कैरेक्टर डालते और कंज्यूम करते जाओ। तो प्रोड्यूसर का काम क्या है कि जब तक बफर फुल नहीं होता है आई प्लस प्लस करके वहां पे आइटम को असाइन करना और एक एक करके आइटम वहां पे डालते जाना, और कंज्यूमर का काम है नेक्स्ट नेक्स्ट, और कंज्यूमर का काम क्या है, वहां से एक एक आइटम को हटाते जाना। तो प्रोड्यूसर का जो वेरिएबल नेम था वो इन था, अभी यहाँ पे तो वाइल ट्रू अगेन दिस वन इज द आइटम नेक्स्ट कंज्यूम, अभी यहाँ पे कंज्यूम वाला आइटम, वाइल इन इज इक्वल टू आउट। अभी दोनों एक ही पोजीशन को अगर पॉइंट करेंगे, जब तक वो एक एक सेम पोजीशन को पॉइंट नहीं करते तब तक हम वहां पे बफर में एक एक करके आइटम्स को रिमूव करके जा सकते हैं। सर्कुलर क्यू याद आ रहा होगा तो आपको ये वाला कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा, सर्कुलर क्यू के जैसे ही। नेक्स्ट कंज्यूम का मतलब क्या रहता है कि बफर में नेक्स्ट कंज्यूम का मतलब है बफर से एक एक वेरिएबल आउट वेरिएबल के थ्रू एक एक एटम को वहां से हटाना, और वो किसको असाइन करना, नेक्स्ट कंज्यूम को। और जैसे ही एक एटम वहां से हट गया, एक कैरेक्टर वहां से हट गया, तो आउट इज इक्वल टू आउट प्लस वन बफर साइज, और वहां से एक एक कैरेक्टर को वहां से हटाते जाना है, और जैसे ही आपका कैरेक्टर हटते जाएगा तो आउट को आउट प्लस प्लस करते जाना है विद द मॉड्यूलर साइन बफर साइज। बफर साइज 10 का मॉड में जब तक आंसर आएगा, एक भी अगर ब्लैंक मिला तो वहां पे प्रोड्यूस होगा, और जैसे एक भी कंज्यूम हो गया तो वहां पे प्रोड्यूसर काम करेगा, और एक भी कैरेक्टर अगर प्रोड्यूस हो गया तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। अभी ये वाला कोड आपने देखा, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक कॉमन मेमोरी एरिया है, बफर है, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स और आइटम्स लिखते जा 10 कैरेक्टर्स और 10 आइटम्स वहां पे लिखने वाले। तो एट ए टाइम प्रोड्यूसर क्या करेगा, वहां पे डेटा डालते जाएगा और कंज्यूमर वहां से डेटा हटाते जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों एक ही लोकेशन को एट ए टाइम अगर एक्सेस करेंगे, मतलब उसने प्रोड्यूस करने से पहले ही अगर कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर देगा, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी, अभी यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी कौन सा था, एरे, और दोनों के दोनों प्रोसेसेस क्या करे कि उसी कॉमन एरे को एक्सेस करके उसको एक प्रोड्यूस करते जा रहा है, दूसरा कंज्यूम करते जा रहा है। लेकिन एट ए टाइम क्या हो रहा है, जब एक कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर उस टाइम पे उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस नहीं कर रहा है, मतलब जब उस पर्टिकुलर एरे में एक वर्ड डाल रहा है प्रोड्यूसर, तो उस टाइम पे कंज्यूमर क्या करता है, उसके बाद वहां पे जाके उसको कंज्यूम करता है। मतलब इन शेयर्ड मेमोरी एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस इज चेंजिंग द डेटा और वैल्यूज while the remaining process is changing
द डेटा आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस इज आउट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब जब फर्स्ट प्रोसेस वहां से डेटा चेंज करने के बाद वहां से हट जाएगा, तब दूसरा प्रोसेस वहां पे जाके अपने डेटा को अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी था एक बफर, जहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेसेस है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन दोनों एट अ टाइम सेम काम नहीं करे। जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उस टाइम पे कंज्यूमर उतने टाइम तक ब्लॉक रहता है, और जब कंज्यूमर उसके टाइम पे उसको ब्लॉक वहां से कंज्यूम करता है तो उतने टाइम पे प्रोड्यूसर ब्लॉक रहता है। मतलब एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस इन शेयर्ड memory. Shared memory is also called as critical section or critical region. Next, an area of memory shared among the processes that wish to communicate. अभी जिन प्रोसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसमें एक कॉमन एरिया होना चाहिए, एंड द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर प्रोसेस, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एरिया जो पूरा है उसका कंट्रोल जो रहता है वो यूजर के हाथ में रहता है। And major issue to provide a mechanism that will allow the user process to synchronize their action with when they access shared memory. और इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि सिंक्रोनाइजेशन है नंबर ऑफ प्रोसेस के बीच में। और ये नंबर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में। नेक्स्ट, और ये वाला जो कंसेप्ट था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये था शेयर्ड मेमोरी का एग्जांपल। अभी सेम आपको अगर मैसेज पासिंग सिस्टम के थ्रू करना है तो मैसेज पासिंग सिस्टम में वो उससे भी सिंपल है। वहां पे क्या करना है, सिर्फ सेंड और रिसीव करना है। एक मैसेज क्यू ऑलरेडी दिया है, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज मैसेज सिस्टम। प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग द मैसेज और बाय रिसीविंग द मैसेज, एंड द मैसेज साइज इज आइदर फिक्स और वेरिएबल। मैसेज की जो साइज है, मैसेज क्यू की साइज या तो फिक्स होगी या फिर वेरिएबल होगी। इट इज डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन यूजर प्रोसेसेस। नेक्स्ट, and if you want to send any data or receive any data, then there must be a communication link is present between the processes. अभी ये communication link जो रहता है, अगर आपको चैटिंग भी करना है तो सबसे पहले आपके पास उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन सेंड द मैसेज ना। सेम वे कम्युनिकेशन लिंक कब आएगा, जब वहाँ पे इंटरनेट होगा हमारे मोबाइल में। और वैसे ही अगर आप दो अलग अलग पीसी के बीच में, एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में अगर डेटा सेंड करना है तो उस टाइम पे जब डेटा शेयर करना है तो उस टाइम पे दोनों पीसी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए, देन एंड देन दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। सो कम्युनिकेशन लिंक मस्ट बी देयर। जब कम्युनिकेशन लिंक होगी तो वहां पे कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू सेंड और रिसीव मैसेजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, और कम्युनिकेशन लिंक के लिए क्या रखता है, शेयर्ड मेमोरी, हार्डवेयर बस, नेटवर्क मतलब लैन केबल एंड ऑल, एंड लॉजिकली they can communicate with the direct or indirect communication, synchronous, asynchronous communication, automatic और explicit buffering. नेक्स्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में डायरेक्टली आप सेंड पी कॉमा मैसेज, सेंड अ मैसेज टू पी प्रोसेस, रिसीव क्यू कॉमा मैसेज, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू। तो यहाँ पे आपको जिसको मैसेज सेंड करना है डायरेक्टली, अगर उस प्रोसेस का नाम अगर आप मेंशन करते हो तो उस प्रोसेस को मैसेज सेंड होगा। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैसेज में लिख सकते हो आप लिंक। जिसका माइक ऑन है, पल्लवी माइक ऑफ करो। पल्लवी पाटिल। In direct communication we can send p comma message and receive q comma message, send a message to process p and receive a message from process q. This is the direct communication. And in for direct communication, link are established automatically, link associated with exactly one pair of communication. Okay, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है या फिर बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है। नेक्स्ट,
और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ मेल बॉक्स। अगर आपको किसी को कोई मैसेज सेंड करना है तो आप उसको मेल करके रखेंगे, लेकिन वो कब रिसीव करेगा, व्हेन वो पर्टिकुलर यूजर जब लॉगिन करेगा ईमेल को, देन उसको उस मेल बॉक्स में जो मेल आपने सेंड किया है या मैसेज सेंड किया उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मेल बॉक्स। इन मेल बॉक्स एवरी मेल बॉक्स हैज a unique ID and processes can communicate only if they share a mailbox। और कॉमन मेल बॉक्स एक शेयर किया हुआ रहेगा जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक मेल बॉक्स क्रिएट करना है, वहां पे सेंड और रिसीव करना है मैसेज थ्रू मेल बॉक्स, और जैसे ही कम्युनिकेशन हो जाएगा डिस्ट्रॉय मेल बॉक्स। ओके, तो मैसेज सेंड करने के लिए सेंड ए कॉमा मैसेज, रिसीव करने के लिए ए कॉमा मैसेज, सेंड मैसेज टू मेल बॉक्स ए, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। यहाँ पे मेल बॉक्स का नाम दिया है ए। ओके, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मेल बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे दूसरा जो है ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, वो वाला पार्ट आया था। तो मैसेज पासिंग में ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का एक कंसेप्ट आता है। ब्लॉकिंग सेंड का मतलब क्या रहता है, द सेंडर इज ब्लॉक अंटिल द मैसेज इज रिसीव। सेंडर को तब तक ब्लॉक करके रखते हैं जब तक वो रिसीवर सारे मैसेज रिसीव नहीं करेगा, तब तक सेंडर नेक्स्ट वाला मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो उसे कहते हैं ब्लॉकिंग सेंड, मतलब सेंडर को ब्लॉक करो until the message is received by the receiver। दूसरा रहता है ब्लॉकिंग रिसीव, रिसीवर को ब्लॉक करके रखो until the message is sent by the सेंडर। जब तक वो मैसेज अवेलेबल नहीं है तब तक रिसीवर को वो मैसेज नहीं मिलना चाहिए, तब तक उतने टाइम तक रिसीवर को रुका के रखना है, ब्लॉक करके रखना है। नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस कहा जाता है, नॉन ब्लॉकिंग को असिंक्रोनस कहा जाता है। नॉन ब्लॉकिंग सेंड का मतलब क्या रहता है, रिसीवर को मैसेज मिले या ना मिले। नॉन ब्लॉकिंग सेंड मीन्स द सेंडर सेंड द मैसेज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मैसेज जो है सेंडर वो उसको सेंड करते रहेगा। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली रिसीवर उसको रिसीव करते रहेगा। आइदर द मैसेज इज प्रेजेंट और नॉट, वैलिड मैसेज और नल मैसेज, वहां पे मैसेज है या नहीं है तो भी रिसीवर उसको रिसीव करते रहेगा। तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो, रुका के नहीं रख रहे हो, तो उसको असिंक्रोनस कहा जा रहा है। और जहाँ पे अगर आप प्रोसेसेस को रुका के रखते हो, ब्लॉक करके रखते हो, until the message not sent by the sender, until the message is not received by the receiver, then it is called as synchronous। okay, next, और ये है बफरिंग। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी का बफर हो सकते हैं। जीरो कैपेसिटी का मतलब क्या है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जीरो। नो मैसेजेस आर क्यू ऑन लिंक, सेंडर मस्ट वेट फॉर द रिसीवर। एक मैसेज भी रहा तो भी उसकी कैपेसिटी, जैसे मैसेज डाला उसी टाइम पे उसको रिसीव करना पड़ेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं, जैसे सेंड किया उस टाइम पे उसको रिसीव करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए बीच में बफर नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। और बाउंडेड कैपेसिटी का मतलब क्या रहता है कि फाइनाइट लेंथ ऑफ एन मैसेजेस, मतलब आप फाइनाइट एक एन नंबर ऑफ मैसेजेस आप सेंड कर सकते हो। और अनबाउंडेड का मतलब रहता है इनफाइनाइट लेंथ, मतलब आप इनफाइनाइट मतलब उसको जिसका नंबर नहीं है, आप इनफाइनाइट मैसेजेस सेंडर सेंड कर सकता है, बफर कर सकता है। तो बाउंडेड कैपेसिटी मीन्स देर इज सम लिमिटेशन n messages, and in unbounded there is no limitation, unbounded infinite length of messages can be sent in a buffer। next, अभी ये वाला जो पार्ट है, ये POSIX वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का है। ये वाला पार्ट आपको नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सप्लेन करके दिया है। नेक्स्ट, मैक चॉइस भी नहीं है आपको, POSIX भी नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नहीं, सॉकेट भी नहीं है आपको। नेक्स्ट, सॉकेट इन जावा, नो। नेक्स्ट करते जाओ।
नो नो पाइप पाइप वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूनिक्स में जब होता है, यूनिक्स आपको है प्रैक्टिकल के लिए इसलिए बता रही हूँ, इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट डायग्राम देखो, नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम है, यहाँ पे क्या रहता है, पाइप कहा जाता है, एक साइड से एक प्रोसेस अपना डेटा वहां पे डालते जाता है और दूसरे साइड से वो प्रोसेस अपना डेटा लेते जाता है। मतलब वन प्रोसेस प्रोड्यूस, मतलब वहां पे एक इनपुट करता है और दूसरा दूसरा प्रोसेस वहां से कंज्यूम करता है, मतलब उसका जो डेटा इनपुट किया है वो वहां से आउट करते जाता है। मतलब वन इज इनपुट एंड अनदर वन इज आउटपुट। वन द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस इज टेक एज आउटपुट to another process, and the concept is done under the pipe concept. Pipe यूनिक्स में जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ना, उसमें नॉर्मली जो शेयर्ड मेमोरी है उसके लिए पाइप वर्ड यूज किया जाता है, पाइप। with the help of pipe, two or more processes can communicate to each other. So this one is the concept of inter-process communication, and the third chapter is over. Now one more time I am just recalling, tomorrow we have a revision on unit number 3, and in Wednesday there is a surprise, surprise नहीं बोल सकते, there is a online quiz on chapter 1 test, and the time limitation is there, only 20 question is there, and for 20 question only 30 minutes is there, and in 30 minutes you have to solve the 20 questions. तो वो 30 मिनट्स में आपको 20 ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट टेकिंग एनी टाइप्स ऑफ हेल्प। इसीलिए मैं आपको 2 दिन पहले बता रही हूँ, आप पढ़ के रखना। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे जिसपे आपको ये टेस्ट देना है, ठीक है। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी नाउ। ओके मैं आपको प्रोजेक्ट का शीट चेक करने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ये बोलना था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिपीटेड, द शील्ड मैनेजमेंट, देन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, अगेन सम ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड,